Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah, we will begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahiqul Makhtoom, the Sealed Nectar, session number 4. Aspects of pre-Islamic Arabian society. By the way, I'm clear, huh? Audible, no? पता चले मैं अकेले बोल रही हूँ. One of you please unmute and confirm. Yes, you are audible. Yes. Okay. Jazakillah khair. Aspects of pre-Islamic Arabian society. After the research we have made into the religious and political life of Arabia, it is appropriate to speak briefly about the social, economic and ethical conditions prevalent therein. तो अब तक के जो हम लोगों ने जो वहाँ प्री इस्लामिक जो हालात थी अरब पेनिनसुला की, उसके हमने पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में थोड़ा जाना. उसके बाद किस टाइप का दीन प्रेवलेंट था उसके बारे में हमने जाना. अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक माली हालात और कल्चरल और नॉर्मल एस्पेक्ट्स जो थे डे टू डे लाइफ के वो कैसे थे. तो सोशल लाइफ्स ऑफ द अरब्स. Arab society presented a social mixture with different and diverse social levels. Women among the social elite were accorded a high degree of esteem and enjoyed considerable free will. यहाँ पर जो माहौल था वो थोड़ा मिक्स्ड कल्चर का था. ठीक है. औरतें जो थी जो एलिट सोसाइटी की जो यानी नोबल या रिच एफिलियंट सोसाइटी की जो औरतें थी वो काफी उनकी फ्री विल चलती थी. Their decision would be enforced and they were so highly cherished that blood would be easily shed in defense of their honor. यानी एक तरीके से देखा जाए तो उन लोगों की कुछ ज्यादा ही चलती थी कि उनके ऑनर में जो गरीब या स्लेव्स या कोई है तो उसके उनकी ऑनर उनकी डिग्निटी को सेफगार्ड करने के लिए बहुत ज्यादा ब्लड बहाया जाता था. In fact, they were the most decisive factors that held the key to bloody fighting or friendly peace. काफी सारे जो वॉर्स या झगड़े या राइट्स या ऐसी कोई चीज होती थी उसके अंदर ये फीमेल का जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था. एंड इट वाज अ डिसाइसिव फैक्टर यानी उनके डिसीजन के ऊपर बहुत बेस्ड होता था ये चीजें. These privileges, notwithstanding the family system in Arabia was wholly patriarchal, according supremacy to the older members of the clan. The marriage contract rested completely in the hands of woman's legal guardian, whose words with regard to her marital status could never be questioned. अब जहां शादी का मामला था वो औरत के वली के हाथ में था बिल्कुल. यानी he has the complete authority और उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था. On the other hand, there were other social circles where prostitution and indecency were widespread and in full operation. अब ये तो बात हो गई जो रिच और हाई क्लास की औरतें थी उनकी स्टेटस की. Coming back to the another तबका जो कि prostitution और ये indecency वाली जो औरतों को treating them like a product वो full operation में था. Al-Bukhari and others reported on the authority of Aisha radiyallahu anha that there were 4 kinds of marriage in pre-Islamic Arabia. अभी according to the narration by Aisha radiyallahu anha यहाँ पर 4 टाइप की डिफरेंट शादियां होती थी. कौन से टाइप की थी? The first was similar to present day marriage procedures, in which case a man gives his daughter or the woman under his responsibility in marriage to another man after a proposal and dowry has been agreed on. तो पहला काइंड जो है वो हमारे आज के टाइप का निकाह का ही सिस्टम है कि जो वली होगा लड़की का वो लड़की को प्रपोजल आएगा एंड वो जो वली है वो डिसाइड करके कि उसको कितनी मेहर देनी है उस पे अग्री करके ही विल गेट द गर्ल लेडी महरम मैरिड टू द पर्सन हु प्रपोज्ड. नॉर्मल सिंपल मैरिज. सेकेंड टाइप क्या थी? सेकेंड टाइप था द हस्बैंड वुड सेंड हिज वाइफ आफ्टर द मेंस्ट्रुअल पीरियड to cohabit with another man in order to conceive. After conception, her husband, if he desired, would have a sexual intercourse with her. बड़ा ही अजीब सा है, but this is there, so we have to understand it. The second kind ये था कि husband जो है वो अपनी बीवी को जब उसके periods हो जाते थे दूसरे आदमी के पास भेजता था ताकि वो कंसीव करे. यानी वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप दूसरे आदमी के साथ करने के लिए भेजता था ताकि वो औरत जो उसकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो. अगर वो कंसीव कर जाती है तो उसका हस्बैंड जो है वो डिसाइड करता था कि उसको फिर से उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप करने हैं या नहीं. अब देखें आप कितना कंफ्यूजन है ये. एंड वी कैन अंडरस्टैंड के लाइनेज मिक्स अप और काफी कुछ अजीब सा ही है ना सिस्टम ये. थर्ड काइंड क्या था? थर्ड काइंड वो था a group of less than 10 men would have sexual intercourse with the woman. यानी
10 से कम आदाद के आदमी जो है वो एक ही औरत के साथ दे विल हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद दिस वुमन। अगर वो कंसीव करती है और वो अपने बच्चे को पैदा करती है, तो शी वुड सेंड फॉर दीज men and nobody could abstain. They would come together to her house. She would say, you know what you have done. I have given birth to a child and it is your child, pointing to one of them. The man indicated in this manner would have to accept. अब ये और भी अजीब सा थर्ड कैटेगरी है कि ये जो औरत है, लेस देन 10 आदमी जो है इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं। अब ये किसी एक से कंसीव हो जाती है, शी ऑल्सो डजंट नो। ये कंसीव होने के बाद क्या होता है, ये सारों को बुलाती है, फिर उसके बाद ये इनको पॉइंट करती है कि मैंने एक बच्चा पैदा किया है और आप लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करने के बाद ये पैदा हुआ है, तो इसमें से कोई एक जो है वो आपका इस बच्चे का बाप है, और उनको जो है एक्सेप्ट करना होगा। यानी वो रैंडमली किसी को पॉइंट आउट करती है, उसको एक्सेप्ट करना होगा कि वो उसका बच्चा है। फोर्थ काइंड क्या था? फोर्थ काइंड ऐसा है कि large number of men would have sexual intercourse with a certain woman. अब ये जो woman है ये prostitute होगी, who would not prevent anybody. Such woman would used to affix a certain flag at their gates to invite people in. If this prostitute got pregnant and gave birth to a child, she would collect those men and a series would tell whose child it was. The appointed father would take the child and declare him or her as his own. ये फोर्थ काइंड में क्या होता था कि ये जो प्रोस्टिट्यूट होती थी, ऑफ कोर्स दे हैव रिलेशंस विद नंबर ऑफ मेन, तो यहाँ पर भी वो लार्ज नंबर ऑफ मेन के साथ उनके रिलेशनशिप होते थे, और वो जो है उनके टाइमिंग्स अपॉइंटमेंट्स की तरह फिक्स करती थी। वो अपने घर के बाहर फ्लैग लगा देती थी, किसका नंबर है, किसका अभी चांस है, तो वो बंदा विल हैव रिलेशनशिप विद दिस प्रोस्टिट्यूट। नाउ इफ शी कंसीव्स, अगर वो इसमें कंसीव कर जाती है तो फिर वो क्या करती थी, हम लोगों ने वो पढ़ा था ना कि ये लोग कैसे फाल उठाते हैं या वो एरोज करते हैं टू डिसाइड, तो ऐसे किसी सीयर के पास जाएगी और उससे पूछेगी कि इस बच्चे का असल बाप कौन है, यानी उस जमाने की डीएनए टेस्टिंग आप समझ लें, एंड देन वो जिसके तरफ इशारा करेंगे उसको एक्सेप्ट करना है ये बच्चा और डिक्लेयर करना है कि वो उसकी नस्ल है। सो ये 4 टाइप हो गए। अब आप देखें कितने वाहियात और कितने खतरनाक और कितने गंदे, बिकॉज आप सोचें कितनी बीमारियां, कितने एसटीडीज, कितने इन्फेक्शन, एंड देन यानी औरत की जो गत होगी और जो हालत होगी वो आप सोच सकते हैं। आप देखें इस्लाम ने, वो लोग जो कहते हैं कि औरतें, मुस्लिम वुमेन आर सप्रेस्ड, people who say that Muslim women are oppressed, अगर ये एक नुक्ता उनको बता दिया जाए कि ये एक भयानक किस्म की जो रीति रिवाज कल्चर चल रहे थे, जो औरत की दशा हो रही थी, जानवरों से बदतर उनका जो हाल हो रहा था, वहां से उठाकर अल्लाह ताला ने हम लोगों को कैसे एक पर्ल की तरह अल्लाह ताला ने हमको ट्रीट किया है, किस तरीके से हमारा ख्याल रखा जाता है, किस तरीके से हमारे हुकूक, किस तरीके से हमको प्रोटेक्ट किया जाता है। सुभान अल्लाह, हु गेव यू दैट स्टेटस? कहां से आया ये आपके लिए रुतबा? किसने आपको ये स्टेटस दिया? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन फैलाया, जो कुरान में मेंशन है, जो हमारी हदीसें हैं, इसकी कदर करें। नेवर एवर एवर इन योर लाइफ कभी भी ये लफ्ज आपके जबान, टिप ऑफ द टंग या दिल में या दिमाग में आना नहीं चाहिए, किसी भी हकामात को लेकर दीन के, किसी भी बात को दीन को लेके कि वाई मी, औरतें, इस्लाम ने जुल्म किया, औरतों को दबाया, औरतों को खेती, ना जाने क्या क्या हम बोल जाते हैं। नेवर अलाउ दैट। रिमेंबर आपको कहां से कहां पहुंचाया दीन ने, एंड दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ इस्लाम, एंड इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ लव फॉर यू दैट अल्लाह हैज। अल्लाह ताला ने आपको वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी, वो ऑनर, वो स्टेटस दिया है। नेवर एवर एवर डिसऑनर योरसेल्फ, या अपने आप को बिलिटल करें या अपने दीन पे शर्मिंदा होना। When Prophet Muhammad ﷺ declared the advent of Islam in Arabia, he cancelled all these forms immediately, all this sexual contact except that of the present Islamic marriage. किसको हलाल और किसको खूबसूरत और किसमें अजर है? जो हलाल है, जिसके निकाह में आप हैं, उसके साथ आपकी एक रिलेशनशिप, नो कंफ्यूजन, नो मिक्सिंग अप ऑफ एनी लाइनेज, कोई शर्मिंदगी, कोई गंदगी, कोई बीमारी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, when you have it the halal way, it is the best way.
Women always accompanied men in their wars. The victors would freely have sexual intercourse with such women, but disgrace would follow the children conceived in this way all their lives. औरतें जो हैं वो आदमियों के साथ जंगों पे जाया करती थी, और जो जीत जाते थे वो ये औरतों के साथ अगेन दे यूज्ड टू हैव रिलेशनशिप विद दिस वुमन, और फिर उसके बाद जब औरतें कंसीव कर जाती थी तो फिर से इनकी जो जिंदगी है लाइफ टाइम के लिए डिस्ग्रेस, यानी वो बच्चे का इलेजिटिमेट रिलेशनशिप ऐसी ही बस बिना नाम बिना नसब हसब के, यानी वो बच्चे की भी क्या लाइफ, क्या उसकी जिंदगी, क्या उसका फ्यूचर, यू कैन इमेजिन हाउ हॉची पॉची द सिचुएशन विल बिकम। इस टाइप की हालत थी, यानी औरतें वर ट्रीटेड एज थिंग्स, एज प्रोडक्ट्स, just for the lust and fulfilling their desires. Pre-Islam Arabs had no limit to the number of wives they could take. They could marry 2 sisters at the same time, or even the wives of their fathers if divorced or widowed. यानी कोई तरीकाकार नहीं था, कहीं कोई बंदिश नहीं थी। 2 बहनों को एक साथ निकाह में शामिल कर दिया जाता था, या फिर अपने बाप की डिवोर्स्ड या विडो वाइफ्स के साथ भी शादी कर ली जाती, यानी महरम गैर महरम वाला कंसेप्ट नहीं था। तो इसमें आप देखें कितनी मिक्सअप है, कोई रिलेशनशिप का बार नहीं, कहीं पे भी कुछ नहीं। इनफैक्ट हम लोग का अभी जो डिबेट हुआ था पॉलीगैमी एंड मोनोगैमी के अंदर, तो वन ऑफ द सिस्टर्स हैड पॉइंटेड आउट कि इस्लाम ने ये जो लोग हम उसको उस एंगल से देख रहे हैं, यानी नंबर 6 हो समझो फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरफ हो तो आपको 6 दिख रहा है, उस तरफ हो तो आपको 9 दिख रहा है। अभी लोगों को ये दिख रहा है कि इनकी 4 बीवियां होती है, मगर वो सोल्यूशन है, वो एक एडवांटेज लेने वाली चीज नहीं है, वो फायदा उठा के अपने गरज के लिए यूज करने वाली चीज नहीं है। बहुत सारे मामले हैं, मैंने उसकी एक्चुअली यूट्यूब की लिंक शेयर किए, हो सके तो प्लीज सुनिए, अपने हस्बैंड के साथ सुनिए, आपको बड़ा मजा आएगा। द पॉइंट इज के इस्लाम के कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस है वो सोल्यूशन के तौर पे उतारे गए हैं, उसको हम अब्यूज नहीं करना है, उसे हमने एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उसे हमने सही तरीके से जैसा उसका रूलिंग्स है उसके हिसाब से करना है, तब जाके आपको इत्मीनान मिलेगा, आपके अंदर सकीनत उतरेगी। तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज अ सोल्यूशन। तो इस्लाम ने नंबर को कंसाइज किया है, उसको लिमिट किया है टू 4। At any given point of time, a man can have 4 wives. And then again, sisters, उसमें rulings हैं, कौन से रिश्ते जो हैं वो महरम गैर महरम वाले हैं, उसके हिसाब से हमने चलना है। And then there is a different fiqh of nikah which will explain everything as to what is to be done, what is to be ignored, and what are the conditions, and how are the roles and the responsibilities and the duties are taken into कंसिडरेशन। सो ये सारी कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। हम लोग जो है वो सिर्फ क्या कहते हैं कल्चर के पीछे भागने लगते हैं, और जो चीजें इस्लाम का हिस्सा नहीं है उसको तरजीह देते हैं। सो जब इल्म आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना होता है और अपनी लाइफ को जो है वो इजी करना होता है, रादर देन लोगों को खुश करने के लिए कर्जे ले लेके बिला वजह वो ग्रैंड शादियां, अननेसेसरी क्या कहते हैं अपने खर्चे बढ़ाना, बोझा बढ़ाना। फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। So may Allah make us that strong, और हमको ऐसी हिदायत दे, ऐसी इस्तिकामत दे, ऐसी तौफीक दे कि हम जो दीन है उसको लेकर चलें, हम दूसरे फैमिली प्रेशर, इन लॉज प्रेशर, सोसाइटियल प्रेशर, उसको जरा प्रेशर कुकर में डाल के हटा दें। Then we can make our lives very easy. So in reference to marriage, in Surah number 4, verses 22 to 23. And marry not women whom your father married, except what has already passed. Indeed, it was shameful and most hateful, and an evil way. Forbidden to you for marriage are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your foster mother who gave you suck, your foster milk suckling sisters, your wife's mothers, your stepdaughters under your guardianship, born of your wives to whom you have gone in, but there is no sin on you if you have not gone in them to marry their daughters, the wives of your sons who spring from your own loins, and 2 sisters in wedlock at the same time, except for what has already passed. Verily, Allah is of forgiving, most merciful. Clear, simple instruction, इंसान को इंसान बनाने वाली चीजें। ये जो incest है फैमिली के साथ, yani I mean we don't know about this, I don't know how many of you have read about it or is aware of the situation, but west में ये बहुत common problem है कि फैमिली विद इन फैमिली सर्कल भी ये सारी चीजें होती हैं, गंदगियां होती हैं। तो हमें जो है अपने आप को बचाना है और दुआ करते चलना है कि हमारी फैमिली, हमारे लव्ड वंस ये सारी गलाजत से बचे रहें। To a very great extent, divorce was in power of the husband.
डिवोर्स जो है वो हस्बैंड के हाथ में था, ज्यादा पावरफुल डिसीजन जो है वो हस्बैंड के हाथ में था. द evil of adultery prevailed among all social classes except for a few men and women whose self-respect prevented them from committing such an act. एडल्ट्री हाई क्लास में भी बहुत, ये हमने अभी भी हमारी सोसाइटी में है कि जो बहुत ज्यादा एलिट रिच क्लासेस हैं उन लोगों के अंदर वाइफ स्वैपिंग और ये सारी चीजें होती रहती है. तो कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा फेम आता है तो उसके साथ ये सारी गंदगी कम्स इन ऑटोमेटिकली. तो ये भी बहुत इस सोसाइटी में भी आम था कि जो उनकी हाई रिच क्लास थी उधर अडल्टरी वाज वेरी वेरी कॉमन. Free women were in much better conditions than the female slaves who bore the brunt of this shameful practice. Of course, जो गरीब है वो भी पिसा जाता है. तो यानी जो बहुत गरीब तबका एंड बहुत रिच तबका, हमेशा ये जो एक्सट्रीम तबका है ये परेशानियों में मुब्तला रहता है. तो स्लेव वुमेन के साथ ज्यादतियां होती रहती थी. Apparently, the great majority of pre-Islamic Arabs did not feel ashamed of committing this evil. यानी उनको कोई हराम हलाल का सेंस नहीं था, तो दे डिडंट फील एनीथिंग अबाउट इट. ये बहुत कॉमन था उनके अंदर. लेकिन उसमें भी चंद लोग थे, मतलब अभी आप देखा जाए तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेम सोसाइटी, जब हमने खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की स्टोरी हमने पढ़ी थी, लाइक शी वाज रिफर्ड एज अ ताहिरा, यानी शी वाज द प्योर ब्रीड. उन्होंने इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी शी चोज, यानी अल्हम्दुलिल्लाह शी चोज टू बी ऑन द स्ट्रेट पाथ. Of course, इस्लाम की शक्ल बाद में आई, but before Islam also वो एक high character की woman थी. Again, the same we have read about Abu Bakr Siddiq रदियल्लाहु अन्हु, that he was a man of morals and character. यानी ये जो loose ends है ना, इसमें वो लोग involve नहीं हुए. So what I would like to say here is कि again at any given point of time, choice हमारी होती है. हम क्या चूज करते हैं. देखिए, हमारे पास ना दो रास्ते होते हैं, हर सिचुएशन में दो रास्ते होते हैं. एक बड़ा इजी और हम लोगों को, हमारी नफ्स को सुकून देने वाला होता है, जो गलत होता है, और एक होता है सही और वो डिफिकल्ट होता है. लेकिन वो रास्ता जो है लॉन्ग रन में भी हमको फायदा देगा और हमारी आखिरा में भी इंशाल्लाह हमको फायदा देगा. वो होता है हलाल वे, वो होता है राइट वे. तो कोशिश ये करें. ये कभी कभार हम स्लिप भी करेंगे. आई एम नॉट सेइंग वी आर एंजल्स, राइट. वी विल हैव प्रॉब्लम्स, वी विल हैव सिचुएशंस जहां पे हमें अपने अपने नफ्सों पे कंट्रोल करना, या हमारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हो जाता है स्लिपेज. बट अगेन आई वुड से कम बैक, लौट आओ, माफी मांगो, गुनाह से जल्द जल्द इस्तगफार करो, मौत आने से पहले अपने अकाउंट्स को क्लियर करने की कोशिश करो, अल्लाह से दोबारा रजू करो, माफी मांगो और फिर स्टार्ट. यानी ये अपने अंदर एक जिहाद है, राइट. तो अपने आप को स्ट्रेट रखने के लिए वापस चलने शुरू करो. लेकिन अगर आपसे एक गलती हो गई है तो वो गलती को कंटिन्यू करते 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 करते, वो कहते हैं ना, आगे का जो रास्ता है वो और मल्टीप्लाई हो के बहुत मुश्किल हो जाती है. वैसे काम ना करें. ट्राई टू बी स्ट्रेट. इसीलिए जिक्र, अस्कार, अपने आप को अच्छी अच्छी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, और खास तौर से ये जो जो चीजों को मना कर दिया गया है ना, कि उसके पास फटके भी नहीं, फहाशा के पास भी ना जाए. ये नहीं कहा है कि फहाशा करे ना, फहाशा के पास भी ना जाए का लॉजिक यही है कि आप उधर जाओगे, यू माइट स्लिप. तो वो जितने भी लूप होल्स है ना उसको क्लोज कर दें. जहां जहां से आपको खतरे का लगता है ना, अंदेशा है, बंद कर दें. इंशाल्लाह मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस. और ये जो खास तौर से ये जो हमारे दोस्त होते हैं ना, एक बार करने से कुछ नहीं होता, सब करते हैं, आजकल की दुनिया है, ट्राई करो, ये बहुत बड़ा फितना है. इससे तो बिल्कुल बच के रहना है. Abu Dawud reported, a man stood up in front of Prophet Muhammad ﷺ and said, "O Prophet of Allah, that boy is my son. I had sexual intercourse with his mother in the pre-Islamic period." The Prophet said, "No claim in Islam for pre-Islamic affairs. The child is to be attributed to the one whose bed it was born, and stoning is the lot of a fornicator." यानी this is a hadith of Abu Dawud. एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके एक बॉय की तरफ पॉइंट आउट करके कहते हैं कि ये लड़का मेरा बेटा है और मैंने इसकी मॉम के साथ रिलेशनशिप्स किया था बिफोर इस्लामिक पीरियड में. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिफोर वाली जो है उसमें कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि तब तक के रूल्स लागू नहीं हुए थे. एंड जो बच्चा है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप हुआ है, ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टिक टू दैट, यू हैव टू क्लेम एंड यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप हुई है. और जो आउट ऑफ द वेडलॉक कुछ करे तो उसके लिए रजम, इट इज फिक्स्ड, कि अडल्टरी का जो पनिशमेंट है वो है. The story about Sa'ad bin Abi Waqqas and Abd bin Zamah disputing over Abdurrahman bin Zamah, the son of Zamah, is well known. With respect to the pre-Islam Arab's relation with his offspring, we see that
Life in Arabia was inconsistent and presented a dark picture of contrast. Whilst some Arabs held children dear to their hearts and cherished them greatly, others buried their female children alive because of an imaginary fear of poverty and shame weighed heavily on them, and they would kill their children for fear of poverty and hardship. इसके बारे में भी हम लोगों को पता है, because in Quran we have read about this. Surah number 6 verse 151, and do not kill your children because of poverty, we provide for you. अब हम लोग बात कर रहे हैं प्री इस्लामिक की, ठीक है. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल कल्चरल थिंग, बट आयरनिकली इस जमाने में भी यू वुड सी पीपल जो कि बच्चे पैदा करने के लिए कतराते हैं, और उनका मानना ये है कि वो उस औलाद को रिस्क प्रोवाइड कर रहे हैं. ऑनेस्टली हु इज राज़िक, हु इज खालिक, हु इज मालिक, हु इज मुदब्बिर? अल्लाह अज़्ज़ा वजल. जब हुक्म है कि इफ यू डोंट हैव एनी strong reason, health का reason, life and death वाला reason, you should not be using contraceptives at all. अगेन मैं इस डिबेट को खोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन जस्ट क्योंकि ये पार्ट ऑफ अवर सिलेबस है, जस्ट सेइंग कि वो जो जहलत वाली सोच थी यहाँ पर आज भी है. जी रेन बोले. नहीं, मुझे बस एक कमेंट करनी थी. आप जो ये प्री इस्लामिक टाइम की बात कर रहे हो ना, मुझे रियली सुनने में लग रहा, ऐसा फील हो जैसे आप आज की बात कर रहे हो. एब्सोल्युटली, मुझे खुद यही फीलिंग आ रही है. इसलिए कल से खास तौर से मुझे ऐसा लग रहा है कि दौर जहालियत ही चल रहा है. बिकॉज उस जमाने की जो डाउट्स, उस जमाने की जो उनकी कॉम्प्लिकेशंस थी, एग्जैक्टली वैसे ही चलती है. इसीलिए वी हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग, वी हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग. से वही कल से जो अब अभी सेम, अभी का टाइम पे सेम चीज होता है. सेम एब्सोल्युटली सेम. ये जो फैमिली इंसेस्ट चल रहा है, ये जितनी भी होमोसेक्सुअलिटी आप देखो, यानी शिर्क देखो, बिदा देखो, यानी इट इज अगेन गोइंग एट इट्स पीक. तो ऐसा लगता है कि ये हम लोग रिपीट हो रही, हिस्ट्री इज रिपीटिंग अगेन इन इटसेल्फ. एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज सेम. हत्ता पहले तो चलो एक के बाद आया, अभी तो सब एक साथ है, सब पीक पे है. मैं अल्लाह प्रोटेक्ट अस. इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारा दीन का काम जो है हमें भी इतनी ही विगर और इतनी ही जोर जबरदस्ती से करना पड़ेगा, इतनी ही जोर शोर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने आप को इल्म के लिए हमें भी दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि शैतान की जो दौड़ है वो टर्बो स्पीड चल रही है. तो हमें भी अपने आप को, अपने लव्ड वंस को बचाना है. इसलिए वी हैव टू आल्सो बी मल्टीटास्क. इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस. तो ये लोग क्या करते थे, बेटियों को दफना देते थे जिंदा. इनको लगता था बेटियां से शर्मिंदगी हो रही है. अगेन अ सेकंड पॉइंट, यू हैव टू फील सो प्राउड कि इस्लाम ने आपको प्रोटेक्ट किया है, इस्लाम ने आपको इज्जत दी. अब देखिए हदीस जो है, अक्सर मेरे बेटे जो कहते हैं बेटों के लिए क्यों नहीं है हदीस, हदीस देखिए आप कितनी प्यारी है लड़कियों के लिए जिनके 3 बेटियां होंगी, उनको अच्छी तरबियत अच्छे से पाला जाए. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दोनों फिंगर्स को ज्वाइन करके कहा कि वो मेरे साथ इस तरीके से होंगे. आप देखें इस्लाम ने हर कदम पे औरतों को प्रोटेक्ट किया है, उनको इज्जत दी है, उनका मान सम्मान बढ़ाया, उनको स्टेटस दिया है. वी आर नॉट सप्रेस्ड, वी आर नॉट ऑप्रेस्ड, वी आर ब्लेस्ड. ये आप अपने जहन में डाल दें, और जितने भी है आपकी बेटियां, आपकी बहनें, उनको बोलते जाए. अगर कोई दीन के मामले में कोई आपके सामने कुछ कहता है तो बी वेरी वेरी डिफेंसिव एंड टेल देम, एक्सप्लेन देम. अच्छे तरीके से उनसे बताएं कि आप इस चीज की कदर करें. दैट दीन ने हमको इज्जत दी है, दीन ने हमको एक औहदा दिया. आप देखें ये बेटी पैदा हो रही, उसको जिंदा काट दिया जा रहा है. उनका मुंह जो है कहते हैं वो शर्म से ब्लैक हो जाता था कि मेरे घर बेटी हुई है. व्हाट इज दिस? लेकिन इतना बड़ा गुनाह था, बट वो बड़े शान से करते थे. एंड कुरान की आयत आ रही है कि यू आर नॉट सपोज्ड टू डू इट, और फिर जाकर लोगों की आंखें खुल रही हैं. Another verses from Surah number 16, verse number 58 and 59. And when the news of the birth of a female child is brought to them, to any of them, his face becomes dark and he's filled with inward grief. देखें आप उनकी कैफियत देखें. He hides himself from the people because of the evil of that whereof he has been informed. Shall he keep her with honor or bury her in the earth? Certainly evil is their decision. अब एक और एक पॉइंट मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज रिसेंटली अभी मेरी ही एक और एक पेशेंट थी, सुब्हानअल्लाह, शी कंसीव्ड अगेन सेकंड टाइम. फर्स्ट उसकी बेटी है, सेकंड भी माशाल्लाह बेटी है. तो हर इन-लॉज आर अपसेट ऑन हर. आई मीन पढ़े लिखे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज नॉट एजुकेटेड. हम लोगों को स्कूल में 6th grade 7th grade में पढ़ाया जाता है, females have the X standard chromosome, male will have the XY chromosome. The gender depends on the male, not on the female. And moreover, ये अल्लाह की तकसीम है, किसको औलाद दे, किसको बेटा दे, किसको बेटी दे, कितने दे, कैसे दे, सब अल्लाह की तकसीम है. How can you defy that and blame that girl? ये जहलाना एटीट्यूड नहीं लगता आपको? But they are blaming her.
कि सेकंड भी उसकी बेटी हो रही है. May Allah protect her and may Allah give hidayah to her in-laws. But this breaks my heart. ये हम बात कर रहे हैं एजुकेटेड फैमिलीज की, ये हम बात कर रहे हैं वो फैमिली की जो बड़ी पायस दिखती है हमको, लेकिन अंदरूनी हालात क्या है हमारे, अंदरूनी इम्प्लीमेंटेशन कितना है हमारे दीन का. It's lost completely. Another verse from the Quran, Surah number 17, verse 31. And do not kill your children for fear of poverty. We provide for them and for you. How many of us around you, around your family, among your friends, among your relatives, I know many personally, जिन्होंने अपने fallopian tubes block करा दिए, operations करवा दिए, contraceptives लगा दिए. Why? आपको लगता है ये आपकी एक चीज, आप में वो कुव्वत है कि आप किसी को पैदा कर सको, या आप किसी को खत्म कर सको, या आप किसी चीज को रोक सको? I have examples where people who have blocked the mouth of their uterus, they conceived on the mouth of uterus. अल्लाह की बात जो है ना, वो साइंस से बहुत ऊंची और आगे है. और हम जो अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं ना, हम अपने सिस्टम्स के साथ मैसअप करते हैं और हम जो है बिला वजह अपने ऊपर गुनाह लेते हैं. It is just my sincere advice to all my dear lovely sisters, don't play with nature, don't play with the rules of Islam at all. अल्लाह पे तवक्कुल करें, अल्लाह ताला आपके लिए सब खैर करेंगे इंशाअल्लाह या रब. Another verse from Surah number 81, verse number 8. And when the female infant buried alive shall be questioned. क्या होगा जब ऐसी questioning शुरू हो जाएगी, interrogation शुरू हो जाएगा, जिसको हमने जानबूझकर कत्ल किया है. May Allah protect us and may Allah forgive us. We should not think, however, that the act of killing infant was commonplace and widespread simply because they needed sons to fight with them against their enemies. Another aspect of Arab life which deserves mention is the Bedouin's deep-seated emotional attachment to his clan. ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इन लोगों का जो है ना, अरब्स का, ये अपने क्लैंस के साथ उनकी जो डिवोशन और लव और अटैचमेंट था वो बहुत आगे था. अभी ये पॉइंट को अगर मैं अभी इससे कनेक्ट करूं, like you see how it works in Kuwait society and Arab society also, I still feel कि it is there, it is dominant. ये लोग अपने लोगों को तरजीह देते हैं. ये हालांकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो था, no Arab will have superiority over the Ajmi, no black over the white. हमने देखा है ये, right? हमने बहुत देखा है कि yes, actually I'm getting a message here that there is a difference of opinion on contraception, but I'm talking in general, जो कि लोगों का attitude है. If you have valid reasons, yes, definitely you can go for it, but if not, then you have to save yourself from committing mistakes. Because I personally know few people who are Islamic scholars, and alhamdulillah, may Allah protect us all. I don't like to say this, but they have committed sins, some grave sins pertaining to this matters of contraception. So may Allah protect us. Better safe than sorry. So you have seen this attachment to the clan, which was already there, पहले भी था और अभी भी है. Family or perhaps tribal pride was one of the strongest passions with them. The doctrine of unity of blood was the principle that bound the Arabs into a social unit, and it was formed and supported by the tribal pride. Their undisputed motto was, support your brother, whether he is an oppressor or oppressed. And we see the same thing happening. चाहे अपना भाई गलत हो, you have to support your brother. You have to support your clan. ये अदल नहीं है, ये justice नहीं है, ये fair नहीं है. This is not what Islam teaches, but this was prevalent. And subhanallah, this still exists. In its literal meaning, they disregarded the Islamic amendment, which states that supporting an oppressor brother means preventing him from aggression. So there is a supporting hadith also on this, कि जिस पे जुल्म हो रहा है और जो जुल्म सह रहा है, वो दोनों भी oppressed हैं. Why? And how can we stop an oppressor from doing an oppression? Yes, the one who is an audience or the one who is in charge has to stop the oppressor. अगर आप oppressor को stop नहीं करते तो आप भी अपना contribution in that oppression डाल रहे हो, आप भी जुल्म कर रहे हो. तो ये बहुत common था. Whether he is an oppressor or oppressed, you have to support your brother. Desire for leadership, a keen sense of competition and ambition to excel others often resulted in bitter tribal warfare. Yani because of power, kursi, you need the chieftain's position. Yani ये जो चीजें थी, उससे इनके internal civil warfare अक्सर हुआ करते थे. In regards
The continued bloody conflicts of Aus and Khazraj, Abs and Dhubian Bakr and Taghlib, etc. are the striking examples. Yani we know that these are the common, most rooted clans थे, Aus, Khazraj, Abs, Dhubian Bakr and Taghlib. तो इनके बीच में यही चीज को लेकर बहुत सारी striking warfares within the clans होती रही है. And intertribal relationships were fragile and weak due to the continual destructive intertribal wars. Yani ye blood carnage was very common. The power hunger, the hunger for expansion, ये हमेशा से रहा है, पहले भी था, आज भी है, and आपस में खून खराबा continuously होता रहा है. However, a deep devotion to religious superstitions and some esteemed customs used to control their reckless tendency to quench their thirst for blood. In other cases, factors like the respect for alliances, loyalty, and codependency could successfully bring about a spirit of affinity and put an end to the groundless spaces of dispute. लेकिन एक deep devotion जो religion को लेकर रहता था ना, सुपरस्टिशंस को, यानी जो उनकी मन घड़त मिथ्स और कंसेप्शंस और ओमेन्स के लिए था, वो कहीं ना कहीं जाकर इस चीज को कंट्रोल करती थी. बिकॉज ओके, इवन दो वॉरफेयर था, इवन दो द हंगर फॉर पावर, इवन फॉर द हंगर फॉर एक्सपेंशन होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये जो इनके गलत दीन था, गलत दीन के अंदर भी जो सुपरस्टिशंस थे, उसको लेकर दे यूज्ड टू ऑनर ईच अदर समटाइम्स एंड बी लॉयल टू ईच अदर समटाइम्स. Like for example, Muharram, Rajab, Zulqa'da and Zulhajj were the prohibited months. यानी इसमें कोई जंग नहीं होगी, कोई hostilities नहीं होगी, कोई bloodshed नहीं होगा. तो ये उनकी एक belief system था और उसमें उन लोग बहुत पक्के थे. यानी उसमें भी उनका devotion and dedication was very very strong. तो यानी कुछ month peace में गुजर जाते थे उनके. We may sum up the social situation in Arabia by saying that the Arabs of the pre-Islamic period were groping about in ignorance and darkness, entangled in a mesh of superstitions, paralyzing their mind and driving them to lead a cattle-like existence. Of course, when you don't have a charter, abhi aap dekhen, subhanallah, we as Muslims, we have, hamare paas ek, जैसे for example, you go as a traveler to some place, आपको पता है, आपके पास मैप है, आपके पास सब बुकिंग्स हैं, आपके पास वीजाज हैं, यू हैव एवरीथिंग ऑन हैंड. यू नो आपका प्लेन इतने बजे टेक ऑफ करेगा, यहाँ पे लैंड करेगा, देन यू हैव अ कार, यू विल बी टेकन, you have a chauffeur driven car, you're going to your hotel, you have a plan, वहां से आपका टूर प्लान है, everything is in your hand. Imagine a situation, आपको एक टिकट दिया जाता है, no information and you are on your own adventure. How that is the situation of a believer and a नॉन बिलीवर. हमारे पास पूरा हमारा मैप दिया गया है, हमें मैनुअल बताया गया है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है, ये आपके फायदे के लिए, ये आपके नुकसान के लिए. अब आप यू आर गिवन द मैप एंड यू आर वॉकिंग. ये हाल है हमारा मुस्लिम होना चाहिए, हम मुस्लिम्स का, कि वी शुड फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट एंड वी शुड वॉक आवर पाथ. But imagine someone who doesn't know what is halal and what is haram and what is allowed and what is not allowed, और मेरे हुदूद क्या है और मेरे मुझे करना क्या है और मुझे क्या नहीं करना है, क्या चीज मेरी सेहत के लिए अच्छी है, क्या चीज मेरे दिमाग के लिए अच्छी है, हमें नहीं पता. एंड वो अपनी विम्स एंड फैंसीज की तरह उड़ते जा रहा है. तो फिर वो किससे कंट्रोल हो रहा है? शैतानी नफ्स से और ये वसवस से, और वो बस गलतियां करे जा रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, कहीं पर कुछ, कोई नुकसान, कोई जानवर, कोई समझ नहीं लग रही उसको. तो हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर कंट्रोल्ड, वी are in a very planned, in a very nice situation. We know exactly what we are supposed to do and we know exactly what we are supposed to avoid. We are in a much better position. और अगर ये सिचुएशन होती है तो इंसान के लिए लाइफ लीड करना बहुत इजी हो जाता है. अदरवाइज it is a big mountain of confusion and you would normally see people, मसलन in the west and stuff, कि ये अक्सर एंड अप कहाँ करते हैं? रिच से रिच क्लास, ओके, ये एंड अप कहाँ करते हैं? either they commit suicide or they are in the mountains, they want to go search. क्या ढूंढ रहे हैं आप? peace. And imagine a Muslim who experiences this sakina, this feeling of mutmainna, every time you're praying tahajjud, you're praying fajr, आप अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हो, आप उम्रे पे जा रहे हो, हज पे जा रहे हो, आप रोजे रख रहे हो, आपको ये मोमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस मिलते हैं. सुभान अल्लाह. एंड दीज पीपल आर हंटिंग एवरीवेयर कि हमको ये सकीनत के मामलात कहीं ना कहीं से हमारे दिल में ये सुकून उतरे.
So subhanallah, another reason for us to say alhamdulillah. The woman was a marketable commodity. जैसे हमने भी देखा कि 4 टाइप की different शादियां, and she was like treated as a thing, as a product, और सिर्फ एक piece of inanimate property. Intertribal relationships were fragile. Greed for wealth and involvement in useless wars were the main objectives of the governed selfish policies of their chiefs. वही सारी जो होती हैं political issues, divide and rule, hunger for power, hunger for wealth, utilize and exploit, और जो नीचे का तबका है उसको कत्लोगार करो, कोई मसला नहीं. How was the economic situation? It was very similar to the social atmosphere, which was clearly illustrated by the Arab way of life. Trade was the most common means of providing a livelihood. However, trade journeys could not be undertaken unless security was granted to caravan routes, and there was peaceful coexistence between the tribes. अभी इनका जो मेन ट्रेड का या जो फाइनेंशियल प्रोवाइडर था वो ये था कि ये ट्रेड किया करते थे, टेकिंग थिंग्स व्हाट दे हैव, सेल इट टू द अदर एरिया, एंड कारवंस आना जाना जो होता था इसी पर ही इनका मेन बिजनेस होता था. लेकिन इसके लिए भी दे हैव टू मेक श्योर कि वो जिस जिस जगह से गुजर रहे हैं वहां से उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा होना चाहिए ताकि दे वोंट बी अटैक्ड. क्योंकि क्या होता था कि फिर ये जो डकैती का बहुत चांसेस होता था कि ये जो अपनी चीजें गुड्स लेकर जा रहे हैं तो अ ग्रुप विल कम, वो डकैती करेंगे, वो माल और पैसा लेके लूट लाट के जाएंगे. तो अगर इनके पास वो पासेस हैं, आई वुड कॉल इट प्रोटेक्शन पासेस, तो देन दे कैन डू द ट्रेड वेरी पीसफुली, कि जहां जहां जो रूट से वो गुजरते जा रहे हैं उनके साथ उनकी एक ट्रेडिंग ट्रीटी हो, एंड दे विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन. Two necessities lacking in Arabia, except during the sacred months within which the Arabs held their assemblies of Ukaz, Zulmaja, Majana, and others. तो ये जो sacred months में है और इनकी जो main assemblies होती थी उसके नाम ऐसे थे, उकाज, जुल्मजा एंड मजाना एंड अदर्स. तो ये assemblies के अंदर ये लोग जो है वो सारी चीजों को डिस्कस करके डिसाइड किया करते थे. Arabia was the farthest of lands from industry. इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह बहुत दूर की बात थी. Most of the industries like knitting and tanning were done by the craftsmen from Yemen, Hira and the borders of Syria. तो इस टाइप के जो क्राफ्ट्समैन थे, knitting और tanning वाला जो काम था वो कहाँ का था? यमन, हीरा और borders of Syria का था. It was still not very common in Arabs. There was a primitive farming and livestock industry within Arabia. फार्मिंग होती थी थोड़ी बहुत, और उसके बाद लाइफ स्टॉक, एज वी कैन सी, वी हैव सीन prophets being shepherd, and also of course लाइफ स्टॉक, कैटल वगैरह का था. Almost all Arab women were adept at spinning yarn, but even this practice was continually threatened by wars. अब औरतें जो थी अरब्स की वो स्पिन करती थी यान, यानी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, तो दे वर इनटू इट. ऑफ कोर्स शीप होगा तो वूल होगा, सो इट्स ऑल रिलेटेड, राइट. तो ये उधर था, अरब वुमेन के अंदर ये प्रोफेशन या ये स्किल था. मगर ये जो कंटिन्यूसली वॉर्स होते थे ना, उसमें ये सारी चीजें जो है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था. ऑन द होल, पॉवर्टी, हंगर एंड डिप्रिवेशन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लोथिंग were the prevailing economic features in Arabia. आपको पता है जहां पर मुसलसल जंगें होती हैं वहां का हाल क्या होता है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का नेचर, वहां का बेसिक नेसेसिटीज जो है वो तहस नहस हो जाता है. इवन द फर्टाइल लैंड्स टर्न इनटू इनफर्टाइल. तो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं to construct, to develop, to have a stable life. तो उसी तरीके से फिर ये भुखमरी एंड मारामारी एंड क्राइम्स जो है वो बढ़ जाते हैं. सो द बेसिक नेसेसिटीज के भी थोड़े से मुश्किलात पैदा हो जाती थी. Ethics. We cannot deny that the pre-Islamic Arabs were involved in numerous evil practices, social vices and evils utterly rejected by reasons with widespread among the pre-Islamic Arabs. But this could never overshadow the highly praiseworthy virtues that were found simultaneously, of which we may mention the following. अब हमने ये तो देख लिया कि ओके, अरब जो थे बहुत बारबेरिक थे, अरब जो थे बहुत इविल प्रैक्टिसेस करते थे, बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट. मसलन अल्लाह ताला ने, why did Allah chose Arabs कि यहाँ पर नबी हो, यहाँ के नबी हो, यहाँ पे कुरान नाजिल हो? कुछ तो बात होगी अरब्स में पॉजिटिव. लेट्स लुक एट व्हाट वर द पॉजिटिव्स. हॉस्पिटैलिटी, ये भी हम लोग अभी भी देखते हैं. सुभान अल्लाह, इनके दिल जो है गनी है, खुले हैं. सुभान अल्लाह. आई एम श्योर पीपल फ्रॉम द वेस्ट जो है वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से रियलाइज करते होंगे. पीपल फ्रॉम द वेस्ट, born and raised there, and now if they are settled in Middle East, they can clearly understand कि
कितने इनका जो दिल है जेनरसिटी के हिसाब से कितना खुला हुआ है. And of course, that sifat was there. They used to compete with each other in hospitality and take utmost pride in it. Almost half of all their poetry was about the praiseworthy or improper manners of entertaining one's guest. हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इनके सोसाइटी में जो है पोएट्रीज का बड़ा चलन था. They used to write poems on different occasions, expressing themselves well with their Arabic literature and poetry. तो इनकी जो पोइट्रीज है इसमें खासा मेंशन है हॉस्पिटैलिटी का. ये अपने गेस्ट के लिए बहुत कुछ करते थे और इनकी जो पोइट्री है उसमें भी ये हॉस्पिटैलिटी का मेंशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता था. For example, if a guest were to visit a man suffering from severe cold and hunger, having no wealth, besides a she-camel upon whom he lives of his entire family dependent, even so he would slaughter it to feed his guest. यानी अब ये गरीब आदमी है, उसके पास सिर्फ एक कैमल है, लेकिन अगर उसके पास गेस्ट आ जाए तो वो बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं कि उस कैमल को स्लॉटर करके उनको फीड करे. दिस इज कमेंडेबल एक्ट. यानी वी आर नॉट लाइक दिस. मे अल्लाह open our hearts to generosity. Amin ya Rab. They would not hesitate to incur heavy blood money and other related burdens just to stop bloodshed and consequently be the object of praise and eulogy, even when they have to incur losses in terms of paying off as a blood money. तो ये कितनी हद तक जाते थे कि ये ब्लड मनी के लिए भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी या अपना खासा जो है वेल्थ उसमें लगा देते थे. Among their foremost qualities was their praise of wine drinking, not because it was worth boasting of by itself, but because it was a means of displaying hospitality and indulgence. अब उस जमाने में उनके ऊपर वाइन ड्रिंकिंग जो थी वो बहुत कॉमन था, तो वो उसको भी प्रेज किया करते थे और बड़े शान से उस चीज को यानी पेश किया करते थे. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि भाई ये पुरानी वाइन है, यहाँ की है, वहाँ की है. अपनी हॉस्पिटैलिटी में वाइन सर्व करना और उसको प्रेज करने का भी उनका बहुत बड़ा चलन था. Of course, they didn't know it was haram that time. So according to them, it was okay. So उनका जो over indulgence था, वो wine में भी था. For this reason, the grape wine was called karam, the same word used for honor, and wine was called the daughter of karam. यानी Arabic में उस time पे the terminology that they used to use for the grape wine के लिए वो क्या कहते थे word terminology karam, and karam was again the synonym यानी उसका होता था honor. So इतना ज्यादा ऑनर एंड वाइन, इतना ज्यादा उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस या इंडल्जेंस अपनी वाइन में रखी थी. एंड वाइन वाज आल्सो कॉल्ड द डॉटर ऑफ करम. यानी ग्रेप वाइन जो है करम, द सिनोनिम इज ऑनर, और वाइन को वो डॉटर ऑफ करम कहते थे. Looking at the collection of odes and poetry of the pre-Islamic period, one discovers that it is filled with chapters upon chapters of praise and boasting. Gambling was also another of their practices. Gambling भी करते थे बहुत ज्यादा, closely associated with generosity since the proceeds would always go to charity. अब gambling जो है वो तो नेगेटिव ट्रेड है, लेकिन वो पॉजिटिव में क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि जो भी उधर से फंड्स रेज किया जाता था वो पूरा चैरिटी में डाल देते थे. यानी गेम खेल दिए, जो जीता उसका पैसा जो जमा हुआ वो पकड़ के उन्होंने चैरिटी में डाल दी, सब गरीबों में बांट दिया. Even the noble Quran does not play down the benefits that are derived from wine drinking and gambling, but also says, Surah Al-Baqarah, verse number 219, and the sin of them is greater than their benefit. Of course, यानी खैर है, लेकिन शर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, तो वो खैर कम हो गया. Even though they are doing charity, but by playing gambling, they're doing charity. So that may not be correct. The second positive point, एक तो हो गया hospitality. The second was keeping a covenant. यानी अपनी ज़बान, अपने वादों के ऊपर कितने पक्के थे ये. For the Arab to make a promise was to run into debt. He would not care for the death of his children or the destruction of his household, all for the sake of upholding the deep-rooted tradition of keeping one's oath or pledge. The literature of that period is rich in stories highlighting this merit. यानी वो अपनी बात के इतने पक्के थे कि अगर उन्होंने वादा किया तो वो केयर नहीं करते थे कि उनका घर लूट जाए, तबाह हो जाए, उनके बच्चे कत्ल कर दिए जाए, उनका ऑनर और अपनी हाउस होल्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन वो अपनी बात से नहीं पलटते थे, which is a very strong quality. Keeping your words, keeping your promises. In fact, those who don't do it, just I'm relating it now, one of the sifats of munafiq, right? They don't keep their promise. But Muslims, they do. Inshallah, ya Rab. The third quality, sense of honor and denial of injustice. इनके अंदर भी वो जो sense of honor थी वो बहुत high थी,
and denial of injustice. Injustice भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता था. Their attribute developed mainly from a surfeit of courage and a keen sense of self-esteem. The Arab was always in revolt against the slightest hint to humiliation or disdain. He would never hesitate to sacrifice himself to maintain his ever alert sense of self-respect. Again, self-respect के आगे वो किसी यानी अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते थे. Self respect is something that they want to always keep it very upright and they want to give it the priority, top priority. So this also was one of their good qualities. और injustice को deny करते थे. Firm will and determination. बहुत strong will थे, बहुत determined थे. An Arab would never lose an opportunity that contributed to keeping up an object of pride or a standing of honor, even if it were at the expense of his life. यानी आप देखिए ये जो qualities हैं ये positive इसलिए हैं कि एक personality को ये spine आपकी जब strong होती है ना, when you are standing for a mission, for a cause, for something in your life, you are going to bear all the negatives around you and still you're going to stay firm. Istiqama. This is a sign of a strong person. और वो जो हर छोटी मोटी हवा चली, आंधी आई, उधर से उधर टर्न हो जाए, इधर मुड़ जाए, उधर मुड़ जाए, that is a weak personality trait. तो इनके अंदर वो जो determination थी and firmness था वो बहुत strong था. Forbearance, perseverance, and mildness. The Arab regarded these qualities with great admiration. No wonder his impulsiveness and audacious lifestyle was sadly in need of them. यानी इनके अंदर था, सब्र था, थोड़े नरम थे, और ये क्वालिटी जो थी ये बहुत एडमिरेशन वाली क्वालिटी थी कि भले वो बहुत जल्दबाज थे, इंपल्सिव थे अपने डिसीजन मेकिंग एंड इसमें, लेकिन इनके अंदर टॉलरेंस और सब्र था. प्योर एंड सिंपल बिटवीन लाइफ. यानी इनको अगर आप डेजर्ट में रख दें, इनको सिर्फ खजूरों पे रख दें, दे वुड सर्वाइव. लग्जरीज की जो थी इनको आदत नहीं थी. The lifestyle was still clean from the trappings of deceptive urban appearances and was a driving reason behind his nature of truthfulness and honesty and detachment from intrigue and treachery. I think this is one thing that we don't see it now. अभी जो है वो बिल्कुल luxuries, lifestyles और privilege dependent हो गए. Only a handful of people belong to this category of simple bedouin life. But this is the thing, okay, when you go back to the basics, when you start cutting unnecessary things out of your life और अपने आप को हम upgrade करें कि हम जो है we can survive in the minimum. अभी ये lockdown में अल्हम्दुलिल्लाह many people have hands-on experienced कि हम बिना malls में जाए रह सकते हैं, हम बिना saloons में जाए खूबसूरत दिख सकते हैं, हम शॉपिंग करे बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, हम लग्जरीज और प्रिविलेजेस के बगैर भी जी सकते हैं. Such priceless ethics, coupled with the favorable geographical position of Arabia, were the factors that lay behind selecting the Arabs to undertake the burden of communicating the message of Islam and leading humanity down a new course of life. यानी इतने priceless ethics जो हैं और plus the geographical position जो हमने last time discuss किया था, being in the center and सारे trade links के बीच जो routes बनता था वो Middle East से बनता था, तो ये factors जो हैं इसीलिए यानी देखा जाए तो the message to be revealed to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and from here the Islam is spreading. ये सारे इसके reasons थे, वजूहात थे, जिससे कि जो काम है वो थोड़ा आसान हो गया. In this regard, these ethics by themselves, though harmful in some areas and in need of modification in certain aspects, were invaluable to the ultimate welfare of humanity. And it was this task of reformation that Islam performed. यानी अभी ये इसमें mix था, ये इसमें positives and negatives हैं, इनमें कुछ चीजें थी वो फायदेमंद थी, कुछ चीजें नुकसानदेह थी. And then इसी को चेंज करना था, जो नेगेटिव्स हैं उसको चेंज करके पॉजिटिव करना था, जो गंदगी थी उसको निकालना था, प्यूरिफाई करना था, और फिर प्यूरिफाई होने के बाद एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, जिन्होंने फिर ये मैसेज ऑफ इस्लाम दूर दूर तक कोने कोने तक पहुंचाए. The most priceless ethics next to keeping one's covenant were no doubt their sense of self-esteem and strong determination. यानी of course changing or uprooting shirk, uprooting bidah, uprooting the old methods जो कि wrong गलत बेस पे बने हुए थे, उसको निकालने के लिए ऐसी कौम चाहिए थी जो बहुत स्ट्रांग, बहुत डिटरमाइंड और जिसका सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग हो. तो ये क्वालिटीज जो थी ना, प्री-रिक्विजिट्स, द अरब्स पोजेस्ड. और ये क्वालिटीज
Two human qualities indispensable in combating evil and eliminating moral corruption on the other hand, and establishing a good and justice oriented society on the other. तो ये सब qualities का जो mix था और फिर ये जो positives को और enhance करके फिर जाकर बनी ऐसी strong society जिससे कि फिर हम लोगों ने पढ़ा था जो बैटल्स का अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बायोग्राफी में भी, और इंशाल्लाह नाउ आल्सो वी विल रीड, कि फिर जाके वो डिटर्मिनेशन आई, फिर जाके वो विल पावर आई कि जो एक ये सारी गंदगियों को हटा के एक न्यू सोसाइटी को डेवलप करके फिर उसके बाद अपना डिटर्मिनेशन और विल पावर को और आगे बढ़ा के हैंडफुल ऑफ सहाबाज जो थे ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड को conquer कर सके, invade कर सके. To sum up, the life of Arabs in the pre-Islamic period was rich in other countless virtues which do not need to be enumerated. So ये mix हम लोगों को थोड़ा समझ आ गया कि how it is. There's only 3 minutes left, and now we have to start the lineage and the family of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I will just take the first para and then inshallah we'll continue tomorrow. With respect to the lineage of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, there are 3 levels. The first, whose authenticity is agreed upon by the biographers and the genealogists, states that Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's genealogy has been traced to Adnan. हमने starting में first session में पढ़ा था. The second, subject to various disagreements, traces his lineage beyond Adnan back to Ibrahim alayhi salam. The third version, with the some parts definitely incorrect, traces his lineage beyond Ibrahim back to Adam alayhi salam. यानी अभी आप देखें कि 3 different types के lineage चार्ट्स है हमारे पास. एक जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अदनान तक जाता है, दूसरा जो है अदनान से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जाता है, और तीसरा वर्जन जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम तक का जाता है. लेकिन ये जो थर्ड वर्जन है ना, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है, वो बहुत इनकरेक्ट है. जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अदनान तक. So some of these points have been mentioned earlier. Here are the details of these 3 sections of lineage. The first, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib, who was also called Shaiba, bin Hisham, named Amr bin Abd Manaf, also called Mughira, bin Qusay, also called Zaid, bin Qila, bin Murra, bin Ka'ab, bin Loy, bin Ghalib, bin Fihr, who was called Quraysh, and whose tribe was named after him, bin Malik, bin An-Nadr, also called Qais, bin Kinana, bin Khuzaima, bin Mudrika, who was also called Amir, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. The most accurate. इसकी बहुत सारी charts और graphs भी मौजूद हैं. The second one, Adnan bin Ad bin Humaysi bin Salman bin Aus bin Buz bin Qamwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Bildaz bin Yadlif bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Makki bin Aid bin Abkar bin Ubaid bin Ad Da'a bin Hamdan bin Sanbir bin Yathribi bin Yahzin bin Yalhan bin Arawi bin Aid bin Deshhan bin Aysar bin Afnad bin Ayham bin Muqsar bin Nahith bin Zahib bin Sami bin Mazi bin Auda bin Aram bin Qaidar bin Ismail alayhi salam, son of Ibrahim alayhi salam. And the third, beyond Ibrahim to Adam alayhi salam, beyond Ibrahim alayhi salam will be Ibn Tarih Azar bin Nahur bin Saru or Saruk bin Ra'u bin Falikh bin Abir bin Salih bin Arfaqashad bin Sam bin Noha bin Lamik bin Mutwashalak bin Aknukh, who was said to be Prophet Idris alayhi salam, bin Yarid bin Mahlail bin Qaynan bin Anusha bin Shit bin Adam alayhi salam. Of मेरी टंग ट्विस्ट हो गई. Anyways, माशाल्लाह इतना अच्छा लगा सुन के. अच्छा, मैं भेजती हूँ टंग ट्विस्टर्स, तुम लोग पढ़ो अभी और अपने अपने ऑडियो क्लिप भेजो मुझे. इसको फोटो भेजो प्लीज. यस, मैं भेजती हूँ. इट्स अ नाइस टंग ट्विस्टर. लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज कहूँ, ये जो फर्स्ट वाला है ना, इफ वी कैन मेमोराइज एटलीस्ट टिल द 10th जनरेशन, इट विल बी वेरी नाइस. बिकॉज ये मुझे खुद यानी आई वाज वर्किंग ऑन दिस. इंशाल्लाह अभी हम लोग इकट्ठे करेंगे कोशिश. ये जो फर्स्ट, जो मोस्ट ऑथेंटिक है ना, फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंटिल अदनान, वी शुड मेमोराइज अ बिट. अच्छा रहेगा. तो imagine these are the 3 lineages that we have, 3 categories from Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Adnan, Adnan to Ibrahim alayhi salam, and Ibrahim alayhi salam back to Adam alayhi salam. So inshallah we will continue with the lineage tomorrow, और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे prophetic family. अभी धीरे धीरे जो है हम लोग पहुंच रहे हैं interesting parts पे. So stay with us inshallah, and may Allah put barakah and accept the effort from us. Any questions, guys?
कोई सवाल, कोई जवाब? यस बशीरा बोलें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। If you have time, I want to share some personal experience. श्योर गो अहेड या बशीरा। माशाल्लाह ये बेटियों के बारे में आपने कहा तो मेरा आज ये प्रोग्राम था कि मैं आज नहीं सुन पाती हूँ आपका लेक्चर, क्योंकि मैं सुबह से थोड़ा भी रेस्ट नहीं ली थी, सुबह से उठी हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा है सुन के, क्योंकि मेरे अब्बा हुजूर के 8 बेटियां हैं। बारकल्लाह फीकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बेटा नहीं, सारी बेटियां। और उस वक्त है ना तो हैंड टू मूव, यानी हमारे अब्बा हुजूर एक ही थे कि कोई दूसरा नहीं था उनको सपोर्ट। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह सभी लोग है ना वो माशाल्लाह ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन अखलाक के अल्हम्दुलिल्लाह, उनका नाम भी था मोहम्मद हुसैन। वेरी नाइस, अल्लाह रहमा या रब। वो माशाल्लाह उन्होंने हमें इतनी अच्छी तालीम दी, इतनी तालीम और तरबियत दी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला उनकी आमीन या रब, अल्लाह रहमा या रब। ये हमको कोई पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम पे, कि लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ते थे हमारे टाइम पे। तो हमारे रिश्तेदारों में से कोई नहीं पढ़ा लिखा था ज्यादातर, यानी कि लड़के पढ़ते थे लड़कियां नहीं। हमको पढ़ा रहे थे सभी लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारी फूफी के, हमारी ताई के, सभी बोलते थे कि जरूरत क्या है लड़कियों को पढ़ाने की, नहीं पढ़ाना, ज्यादा नहीं पढ़ाओ, 10 क्लास बस है, काफी है, ऐसा बोलते थे। लेकिन उन्होंने ना डट के सबका सामना करके उन्होंने हमको बोला कि बेटियां हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक तुम कामयाब होगे तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, अगर तुम फेल हो गए तो तुमको स्टॉप करूंगा। इस तरह उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चियों को बहुत अच्छी तालीम दी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4-5 लैंग्वेजेस आती है। जबरदस्त माशाल्लाह, वेरी नाइस बशीरा, रियली दिस इज गुड। मे अल्लाह ब्लेस हिम, मे अल्लाह गिव हिम द बेस्ट। उनकी जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ा था उन्होंने, उनके एंड दिनों में उनको शौक पैदा हुआ कि सब लोग मस्जिद में कुरान पढ़ते हैं तो मुझे पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने सीखा घर में बैठ सीखा और सबक सुनाते थे हमको। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 बेटियों की शादी करने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। जब उनकी 60 साल की उम्र हो तो उनको पता चला था कि 63 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। जब बयान सुनते थे कभी कभी मस्जिदों में, तो उन्होंने आके बोला एक बार कि अब मैं 3 साल के बाद अगर मेरी फौत होगी तो मैं सुन्नत पे होगी। तो उसी तरह उनको अच्छे थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो एक्सीडेंटली उनको 3 साल के बाद उनकी फौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह आमीन या रब, इंशाल्लाह। नो वरीज, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या सारी रब। बेटियां नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं माशाल्लाह, आप लोगों को देखकर अंदाजा लगता है कि उन्होंने कैसी तरबियत दी होगी, क्योंकि अभी जब हम पेरेंट्स बने हैं तो हमें पता चलता है कि अगर औलाद जो है कुर्रतुल आयुन है तो लाजमी है कि अल्लाह का ये बहुत बड़ा फजल और करम है, और उनके अमाल डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे, इसलिए ऐसी औलादें मिलती हैं। तो सुभान अल्लाह, वी कैन मेक आउट। मे अल्लाह ब्लेस अवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जो है वालिदैन जो हयात हैं उनको अल्लाह ताला सुकून दे, खुशियां दे, और जो फौत हो गए उनको अल्लाह ताला जन्नत के बागान दे या रब। आमीन। Mashallah, glad that you shared it, Bashir Nisa. Alhamdulillah. जज़ाकल्लाह खैर। Very nice. कीजिए हमारे Mashallah, yeah. Yes, Usma darling, बोलें। No, nothing. I'll just saying Ameen and nice. She's. I thought you want to share. You want to share your mother's story or something. No, Alhamdulillah. Same. Accident. Just Allah rahmahum, both my parents. Ameen. Wajmain ya Rab. They brought us up in a nice upbringing was very good. Alhamdulillah. I mean, they went away with that thoughts. I mean, like we made them proud. The people, when they were alive, they told them कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सलीके वाले। अभी यही सोच के हमको थोड़ा टेंशन आता है ना कि we don't know how good parents we are. We don't know how our children are going to turn out to be. और इसलिए बार-बार हम कहते हैं कि दुआ करते रहे। Yes. वही दुआ करते रहते हैं इंशाल्लाह। मैं भी बच्चों को बोलते रहती हूँ like see, अल्लाह ताला मेरा parents proud. अल्लाह ताला उनको प्रोटेक्ट करे, और इसलिए दुआ करते रहें कंटिन्यूसली, अपने आप को अच्छे दीन के काम में लगाए रखें, इल्म हुसूल के लिए, दावा के लिए, खैर का काम करते रहें, क्योंकि दीज आर द थिंग्स। आप इवन इफ यू सी एनी ऑफ द पेरेंटिंग, आप इस्लामिक स्कॉलर्स के आप देख लें, चेक कर लें, तो वो यही कहते हैं कि आपके अमाल जो है इट विल रिफ्लेक्ट। So make sure that you rectify yourself as much as possible, and then you will see कि आपका घर का माहौल और आपके बच्चे जो हैं slowly बिइज़्निल्लाह वो दीन की तरफ माइल हो ही जाएंगे। तो just keep a check on our activities, that is enough. Make दुआ constantly make दुआ। हमारा कमाल नहीं है, अल्लाह का करम होना जरूरी है।
ठीक है ना? तो इंशाल्लाह we'll catch up tomorrow, girls. जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.